سات صلیبی کلمے پکارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے۔ آخری کلمے کی طرف جائیں گے جو ہے 7واں کلمہ، اور 7واں کلمہ ہے دوبارہ ملاپ کا کلمہ، اور اس کو بیان کریں گے خدا کے خادم بشپ بیٹا گلشن، اور اس کی تلاوت جو ہے وہ بیٹی اقصیٰ ڈیوڈ کرے گی۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 7واں کلمہ جو کہ ہے دوبارہ ملاپ کا کلمہ، لوکا کی انجیل اس کے 23ویں باب اور اس کی 46ویں آیت میں یسوع مسیح کچھ یوں فرماتے ہیں، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آخری کلمے کی شکر گزاری کریں گے، دعا کریں گے۔ جتنے بھی بہنیں بھائی خدا ان کی حضوری میں ہیں، سبھی اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ بہن شازیہ شر آگے آئیں گے اور خدا کے خادم کے لیے اور آئی ہوئی کلیسیا کے لیے برکت چاہیں گے۔ حضور آسمانی خدا مجھے یسوع مسیح کے نام سے ہم آپ کے قدموں میں آتے ہیں۔ خدا باپ، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا آپ بنے ہیں، آپ رحیم ہیں۔ خدا ہم میں دل سے شکر گزار ہوں۔ خدا آج کے آپ کے پاک دن کے لیے خدا ہم میں دل سے شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا جتنی عبادت ہو چکی ہے، خدا باقی مہینہ وقت کو خدا آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں۔ خدا میں خاص دعا کرتی ہوں، خدا اس سال کے کلمے کے لیے خدا میں بشپ جی کو آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں، آپ کے پاک لہو میں چھپا دیتی ہوں۔ اپنے بندہ کو خدا سر کی چاندی سے پاؤں کے تلوا تک چھونا، اپنے بندہ کی حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ خدا جب کہ آپ کا بندہ کلام بیان کرے، خدا اپنے بندہ کو خدا چھونا اور بڑی برکت دینا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ خدا پاک خدا آپ نے خدا ہمارے لیے صلیبی موت کو قبول کیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ خدا کے دل سے آپ کی شکر گزار ہوں۔ خدا آپ نے ہمارے بوجھ اپنے اوپر لے لیے۔ خدا میں آپ کے دل سے شکر گزاری کرتی ہوں۔ خدا جتنے لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، خدا میں سب کو آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں اور آپ کے لہو میں چھپاتی ہوں۔ خدا اس وقت میں ہم سب کو چھوڑ بڑی برکت دے، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے آمین۔ 7واں کلمہ کہہ کر دیکھو، سولی پر میل ملاپ کے نعرے مارے یسوع نے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یسوع نے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے کا جو دن ہے، یہ خاص طور پر مسیحی ایمانداروں کے لیے یہ بڑا شاندار دن ہے۔ 7واں کلمہ جو ہے یہ کروشل کلمہ ہے، یعنی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا منصوبہ جو آسمان کے خدا نے بنایا، بے شک اس منصوبے میں سے گزرنے کے لیے بہت سی تکالیف بھی ہوئی، بہت سی مصیبتیں بھی ہوئیں، بہت سی آزمائشیں بھی ہوئیں، بہت سی ایذا رسانیاں بھی ہوئیں، بہت سے بڑے بڑے معجزات بھی ہوئے، بہت سے حیرت انگیز واقعات بھی ہوئے۔ ان سبھی میں سے گو تھرو ہونے کے بعد اب اس مشن کی تکمیل ہوتی ہے، یعنی 7واں کلمہ سپردگی کا کلمہ۔ یہ کلمہ بھروسے، اعتماد اور توکل کا پیغام ہم سب کے لیے لے کر آیا ہے۔ مل کر شاؤٹ کریں گے آمین۔ یہ واقعہ میں آپ کو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہوا، لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 23 اور اس کی ہم 44ویں آیت سے ہم 46ویں آیت تک پڑھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے، پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا اور سورج کی روشنی جاتی رہی اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے
बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। कलामे मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अहले कलीसिया मिलकर शाउट करें आमीन। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर हमारे आका ने जमीन पर 3.5 साल लोगों की मुसीबत को, परेशानियों को, बीमारियों को, दुखों को अपने कंधे पर उठाने वाले यीशु मसीह ने मेरे अजीजों दम दे दिया। ये ऐसा सलीबी कलमा है जो यीशु ने जिस्मानी मौत के वक्त सहा, यानी जिस्म में यीशु मसीह को पेन हो रही है। इमेजिन करें भाइयों बहनों, चर्च, कितना छलनीय था यीशु मसीह। एक शख्स को पहले 39 घोड़े लगाए और एक वो जो घोड़ा था उसके मुंह कितने थे, अगर उसको मल्टीप्लाई करें 39 को तो 365 जख्म अपनी कमर पर उसने खाए। इतना छलनी हुआ, हाथों में लंबे लंबे कील लगवाए, पाँव में कील लगवाए गए। और मुख्तसरन बयान करता हूं कि जान कनी की हालत है। फिर ऊपर से इतनी भारी सलीब, 150 केजी उसका वजन, कंधे पे उठाकर पैंतुस पिलातुस की अदालत से सफर शुरू करते हैं और कहाँ पहुंचते हैं? जुलगता के मुकाम पर, या जिसे गुलगता भी कहते हैं, वहां तक लेकर गए। और सुनिएगा, इतनी जान करने की हालत, उसने तमाम रूहानी जिस्मानी दुख और गम बर्दाश्त किए। उसने मौत के जरिया से हमारे आका ने मेरे अजीजों फतह पाई। हालेलुया। मौत में से गुजर कर उन्होंने फतह पाई थी। ये मिशन, यहाँ पर मिशन की तकमील हो गई है। ना सिर्फ मिशन की तकमील, बल्कि यीशु मसीह अपने आप को अपने बाप के सुपुर्द कर रहे हैं कि बाप, मैं अपनी रूह को फिर दोबारा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसके बारे में हम सीखेंगे, ये क्यों रूह सौंपी गई है। चर्च, यहाँ पर यीशु मसीह अपने बाप से कह रहे हैं, और ये भरोसे की दुआ है कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। आज अगर हम ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत में देखें तो बहुत से यहूदी लोग इस दुआ को दोहराते हैं कि ऐ बाप, हम अपनी रूह को तेरे हाथों में दे देते हैं। और ये दुआ चर्च, ईमानदारों, खुदा के लोगों, हर ईमानदार को करना लाजम है कि बाप, हम अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। मैं कहता हूँ, आप उम्र में बड़े, आपकी उम्र की दराजी हो, आप सेहतमंद तवाना हो, लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखिएगा। यहाँ पर मैं मेडिटेट कर रहा था, इस कलमे पर मैं मेडिटेट कर रहा था, और मैं खुदा से कह रहा था कि जब मेरे जाने का वक्त करीब होगा तो मैं इसी आयत को, इसी कलमा को दोहराऊंगा कि बाप, मैं अपनी रूह अब तेरे हाथों में दे देता हूँ। हमें अपना आप खुदा बाप को सौंपना है। चर्च, हम यहाँ पर मुस्तकिल, हमें ठिकाना नसीब नहीं है। हम मुसाफिर हैं और हम परदेसी हैं। परदेसी का देश नहीं होता है। हम आने वाले मुस्तकिल शहर के मतलाशी हैं, और हम न्यू यरूशलेम के, नए यरूशलेम के सब बाशिंदे हैं। मिलकर शाउट करें आमीन। यीशु ने फरिश्तों को बताया कि मैं आ रहा हूं। यहाँ पर हम कुछ बातों पर गौर करेंगे। एक ही आयत में इतनी गहरी बातें हमारे आका ने हमको सिखा दी। पहली बात, यीशु मसीह ने फरिश्तों को ये बता दिया ताकि उसे जलाल और इज्जत का ताज पहनाया गया। ये अल्फाज के बाद अब ताज फरिश्तों के हाथ में था।
کہ جیسے ہی آقائے دو جہاں، خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، اس دنیا کے منجی جیسے ہی ہمارے پاس آتے ہیں، ہم انہیں اس فتح مندی کا، ہمیشہ کی زندگی کا تاج پہنائیں گے۔ وہ باپ کے ساتھ اب اس شاہی تخت کے داہنے ہاتھ بیٹھنے جا رہے ہیں، یسوع مسیح۔ اگر میں آپ سے پوچھوں چرچ کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح اس وقت کہاں ہے، تو آپ ایمان، بھروسے، یقین اور خدا کے کلام کے مطابق آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے آقا یسوع مسیح باپ کے دہنے ہاتھ ہماری سفارش کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر اس کلمے کے بعد یسوع مسیح کو آسمان کا اور زمین کا کل اختیار مل گیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ وہ اس دنیا کا خالق اور مالک کہلایا۔ آسمان اس کے زیر تھا میرے عزیزوں، ہر چیز کا وہ مالک تھا، اور اب سب کچھ، جو کچھ بھی خدا نے اس زمین پر خلق کیا تھا، سب اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے پاؤں تلے کر دیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور چند ایک باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلمے میں بے شک کافی وقت گزر گیا تھا، سن سے نکلنے میں چند سمے باقی تھے۔ یسوع مسیح نے آخری لمحہ بھی اونچی آواز میں پکارا، اپنے باپ کو پکارا۔ جذباتی لگاؤ تھا، روحانی لگاؤ تھا، ایک گہرا لگاؤ تھا، اور بڑی آواز میں پکار کر کہا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کی آواز جسمانی تھکاوٹ اور روحانی اذیت سے نہیں تھی۔ جسم تھکا ہوا تھا، جسم چکنا چور ہوا تھا، جسم میں سکت باقی نہ تھی، روح یسوع مسیح کی تر و تازہ تھی، چونکہ روح کا ملاپ اب باپ کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ اسی امید سے میرے عزیزو، اسی تقویت سے میرے عزیزو، اس کے بیٹے یسوع مسیح نے بڑی آواز سے، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں۔ مل کر شاؤٹ کریں آمین۔ یسوع نے خود اپنی جان دینے کا اختیار استعمال کیا تھا۔ وہ چاہتا تو ابھی اپنی جان نہ دیتا، یہ اس کے اختیار میں تھی۔ بچو، چرچ یہ یسوع مسیح کے اختیار میں تھی، اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دینا۔ اور سنیے گا، پھر بلند آواز سے پکارنے کا کچھ مقصد تھا، خاص مقصد تھا، اور وہ پہلا مقصد جو تھا، کچھ خاص بات اپنے باپ سے کہنے جا رہے تھے۔ اونچی آواز میں وہ بات کی جاتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں ہم اپنے اندر سے پیشن نکالتے ہیں، ہم اپنے اندر سے انرجی نکالتے ہیں، ہم اپنے اندر سے طاقت کو ریلیز کرتے ہیں چرچ۔ اور سنیے گا، یسوع نے الہی مشن کو اس کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل کیا۔ مل کر شاؤٹ کریں آمین۔ یہ مشن یسوع مسیح نے جو صلیب پر پورا کیا تھا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اس مشن کو پورا کیا۔ ہاللیلویہ۔ اس مشن میں ہمارے مقاصد پورے ہوئے تاکہ ہم ابلیس کے ہاتھوں شکست خوردہ نہ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اس کے مار کھانے سے ہم فتح پائیں۔ مل کر شاؤٹ کریں آمین۔ پھر دوسری جو اونچی آواز میں بات کرنے کا دوسرا جو مقصد تھا، تاکہ سب لوگ سن لیں، وہاں پر جو صلیب کے نیچے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی سن لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو، آسمان سے جتنی فورسز یسوع مسیح کا انتظار کر رہی تھی وہ بھی سن لیں۔ جب یسوع مسیح نے 4 دن کے مردہ لازر کو قبر میں سے بلایا تو کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند نے بلند آواز سے پکارا اور کہا، لازر باہر آ جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ اور 4 دن سے پڑا ہوا قبر میں لازر میرے عزیزو اپنے کفن دفن کے سمیت میرے عزیزو قبر میں سے نکل آیا۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔
हालेलुया। और तीसरी बात, अब फरिश्ते और आसमानी लश्कर बड़ी बेचैनी से अपने आका का, अपने खुदावंद का और बादशाही के बादशाह का मेरे अजीजों बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। जमीन पर लोग बैन कर रहे हैं। उसकी माँ की हालत मेरे अजीजों वो रो रही है। यरूशलेम की बेटियां, बहनें, औरतें यीशु मसीह पर बैन कर रही हैं और वो उनको कंसोल कर रहा है, बहनों, बेटियों, माओ, सुनो, मुझ पर बैन न करो, मुझ पर मातम न करो, अपने आप पर और अपने बच्चों पर। हालेलुया। ये फरिश्ते, जो आसमान के फरिश्ते बेचैनी से यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे, खुदावंद का बुलंद आवाज से ये कहना कि तमाम हुआ। अब एक तरह से ऐलान था कि आसमानी लश्कर तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। हालेलुया। यीशु की आमद और इस्तकबाल की तैयारियां आसमान पर हो रही थी। जमीन पर खौफ था, जमीन पर डर और मेरे अजीजों एक सुनाटा छाया हुआ था। शागिर्द सहमे सहमे थे, शागिर्द छुपे हुए थे, शागिर्दों ने पनाहें ढूंढ ली हुई थी, लेकिन आसमान के फरिश्ते सुने चर्च, आसमान के फरिश्ते खुशी और शादमानी मना रहे थे और इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे थे। हालेलुया। यीशु जमीन पर आया था तो फरिश्तों ने खुशी मनाई। हम क्रिसमस पर कहते हैं कि आसमान से फरिश्तों का एक गिरोह नीचे आया और उन्होंने नारा लगाया कि आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो। हालेलुया। फरिश्ते गुनगुनाए थे मसीह की पैदाइश पर, और आज यही फरिश्ते मेरे अजीजों जो मसीह की पैदाइश पर आसमान से जमीन पर आ गए थे, अब यही फरिश्ते आसमान पर मसीह की आमद के मुंतजर होकर उसे होशाना होशाना आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो मेरे अजीजों नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मसीह के वसीला से जमीन पर निजात का मंसूबा शुरू हुआ था। निजात का बानी एक ही है। बहुत से लोग निजात की तरफ ले जाने के लिए लोगों को अपनी अपनी तालीमात में महव किए हुए हैं, लेकिन सुन ले, आप दुनिया के वो बाकदर लोग हैं जिनके लिए निजात हर वक्त मुहैया है, और वो निजात का बानी यीशु मसीह है। हालेलुया। अब वो खुदा की हम्द करेंगे क्योंकि लोग यीशु पर ईमान लाकर निजात पाए हैं। अगर मैं यहाँ पर 7वां कलमा बयान कर रहा हूँ तो उसकी वजह एक ही है, और वो मेरा मुक्ति दहिंदा, मेरा निजात दहिंदा यीशु मसीह है। हालेलुया। इसी तरह आसमान पर मसीह का इस अजीम इस्तकबाल किया गया। चर्च कलीसिया को लेने आने के वक्त अब फरिश्ते, वही फरिश्ते जिन्होंने मसीह की पैदाइश के वक्त उसे होशाना कहा, उसकी तमजीद के गीत गाए, और जब मसीह खुदावंद आसमान पर चले गए उन्होंने शहाना उनका इस्तकबाल किया। अब यही फरिश्ते जब ईमानदारों को लेने के लिए आएंगे तो यही फरिश्ते अपने आका, अपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ आएंगे बादलों पर। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये दुआ है। आज भी यहूदी लोग जो है इस दुआ को पढ़ते हैं। ये हमारी दुआ भी है। चर्च ज़बूर 51 में लिखा है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हमें इसका विर्द करना है, हमें इस आयत की रेपिटेशन करना है, हमें इस आयत को दोहराते रहना है। चर्च यीशु मसीह ने मौत के वक्त अपनी रूह को बाप के हाथ में सौंप दिया था कि वो तीसरे दिन उसे वापस देकर उसके बदन को नई जिंदगी बख्शे। हालेलुया। सलीब पर यीशु ने अपनी रूह को अपने बाप को सौंप दिया ताकि बाप उसी रूह को नई जिंदगी में बदल दे, ताकि वो तीसरे रोज एक नई जिंदगी बनकर तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। ये 3 दिन के लिए बाप के पास अमानत के तौर पर रुक गई है।
खुदा ने अपनी अज़ली रूह के वसीला से यीशु मसीह को जिंदा किया। सब मिलकर शाउट करें आमीन। वो हमारी रूहों की हिफाजत कर सकता है और वो करता है। चर्च, यीशु मसीह हमारे लिए है। दाऊद नबी ज़बूर 31:5 में आयत में कहते हैं यही हमारे खुदावंद ने किया और यही हमें भी करना है। लाज़र के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्तिफनस ने भी जब उसे लहू लहान किया गया, आप गौर से जरा स्तिफनस की भी बात सुने, जब वो मरने के करीब था उसे शदीद जख्मी कर दिया गया था। तो स्तिफनस ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और कहा कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये बाइबल मुकद्दस बयान करती है। चर्च, हमें मौत के ऐन वक्त अपने आप को खुदा की स्पुर्दारी में देना लाजम है। ये नहीं कि हड्डियां रगड़ रगड़ के मर जाइए। मैं आपको तलकीन करता हूँ, मैं आपको एडवाइस करता हूँ। पहली बात, मैं आपको उम्र की दराज़ी की दुआ देता हूँ। लेकिन दूसरी बात, हम सब ने अपने सफर का खात्मा करना है। हम सब ने कहना है तमाम हुआ, अब एंड हो गया है सब कुछ। और जब सब कुछ एंड हो जाए चर्च, फिर आपने आसमान की तरफ देखना है। बेशक आपकी हालत अब कैसी भी क्यों ना हो, आपने आसमान की तरफ देखकर अपने बाप को कहना है, बाप, मैं भी अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मिलकर शाउट करें आमीन। और कलाम मुकद्दस में फिर चौथा जुज़ जो है, फिर यीशु मसीह ने दम दे दिया। यूं उसने अपने सर को झुकाया और अपनी जान को, अपनी रूह को मेरे अजीजों अपने बाप के सुपुर्द कर दिया। ये सुपुर्दारी का कलमा है। उसने, यीशु मसीह ने अपने आप को अपने बाप के सुपुर्द कर दिया। चर्च, और बहुत से लोग अपने वक्त पर भी मरना नहीं चाहते। कौन है? कुछ भी, कोई भी नहीं इस बात का ख्वाहिशमंद होगा। मैं नहीं ख्वाहिशमंद होगा, मुझे पता है अभी बहुत सी जिम्मेदारियां मैंने निभानी है। कोई भी नहीं होगा, एक बूढ़ा शख्स भी कभी नहीं रेडी होगा। लेकिन सुनिएगा, जबकि कुछ लोग वक्त से पहले अपने मरने के लिए भी मेरे अजीजों तैयार रहते हैं। बहुत से लोग, अगर हम मूसा की दुआ में देखें, ज़बूर 90 में मूसा खुद खुदा से ये कह रहा है। हजरत मूसा मर्दे दुआ खुद खुदा से कह रहा है कि हमें हमारे दिन गिनना सिखा, ऐसा कि हम दना दिल हासिल करें। उसका वो खुदा से अपने दिलों के बारे में पूछ-गीछ कर रहे हैं। चर्च, ईमानदारों, खुदा के लोगों, ये आरज़ी जगह है। हम एक बहुत लंबी जिंदगी गुजारने जा रहे हैं जिसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। यहाँ का 1000 दिन, 1000 साल वहाँ का एक दिन के बराबर है। जहां हम हजारों साल हमेशा हमेशा के लिए अपने आका यीशु मसीह के साथ आसमान पर बादशाही करेंगे। ये ना खत्म होने वाली जिंदगी है, कंटिन्यू रहने वाली जिंदगी है। इस आरज़ी जिंदगी में मेरे अजीजों एक अच्छा फैसला करने, एक बेहतरीन फैसला करने, यहाँ का 1000 साल वहां का एक दिन के बराबर है। और ज़बूर 90 में लिखा है कि ये हमारी जिंदगी खुदा की नजर में ऐसे ही है जैसे हमने आंख झपकी और यूं जिंदगी का इख्तिताम हुआ। जैसे हमारी पलकें ऐसे ऐसे ब्लिंक करती हैं, जिंदगी भी कुछ ऐसी है। चर्च, ये बाइबल में लिखा है। और सुनिएगा, यीशु ने अपनी आजाद मर्जी से जब तमाम सजाओं को, सब अजियत को सह लिया, तो मेरे अजीजों नविश्ते पूरे कर लिए। माँ का बेटा होते हुए अपनी जिम्मेदारी जो थी अपने भाई को, यूहन्ना को जब उसने सौंप दी मेरे अजीजों, और जब सारा मिशन मुकम्मल कर लिया मेरे अजीजों, और इंसानी सूरत में आया था और अपनी आजाद मर्जी से, खुशी से मेरे अजीजों उसने अपना दम दे दिया और अपने बाप को सौंप दिया। हालेलुया। हमें अपने दौर में खुदा की मर्जी जानकर उसे पूरा करने की जरूरत है। हम सबको यहाँ पर जो आज गुड फ्राइडे के दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब ने न सिर्फ अपनी मर्जी को बल्कि अपने बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में तलाश करना है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। सातवां कलमा कह कर देखो, सूली पर मेल मिलाप के नारे मारे यीशु ने।
क्या क्या नक्श उतारे यीशु ने।